Good morning, students. I am Dr. Neera Singh, and today we are going to discuss chromosomal abnormalities. On the previous turn, we studied numerical chromosomal abnormalities. Today, we will be studying structural chromosomal abnormalities. Let me refresh your knowledge. On last turn, we studied chromosomal abnormalities arising due to change in the number of chromosomes. And what are chromosomal abnormalities? Chromosomal abnormalities are any change in the number or structure of a chromosome called chromosomal abnormality. यानी कि जो क्रोमोसोम्स का नॉर्मल नंबर है उस नॉर्मल नंबर से या तो नंबर में चेंज हो जाए और या फिर क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर में कोई चेंज आ जाए, ये सारे के सारे इंक्लूड होंगे अंडर हेडिंग क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज. नॉर्मली यूकैरियोट्स में देयर इज डिप्लॉयड सेट ऑफ जीन्स. हर जीन की 2 कॉपी प्रेजेंट होती है. अगर न्यूमेरिकल चेंजेस होंगे या स्ट्रक्चरल चेंजेस होंगे, इन चेंजेस से देयर कैन बी 3 कॉपीज ऑफ अ जीन. अगर जीन की 3 कॉपी होती हैं तो जीन का प्रोडक्ट का अमाउंट या जीन का जो एक्सप्रेशन है वो 1.5 टाइम्स बढ़ जाएगा. और अगर बाई चांस देयर रिमेन्स ओनली सिंगल जीन, तो जो जीन का प्रोडक्ट है या जीन का एक्सप्रेशन है वो हाफ रह जाएगा. Structural abnormalities, these can either arise de novo, that means new. जो इंडिविजुअल जिसे हम स्टडी कर रहे हैं उसी के अंदर ये जो चेंजेस हैं de novo न्यू अराइज हो सकते हैं, और these can be inherited from the parent, one of the parent. जो स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं ट्रांसलोकेशन हो सकते हैं, डिलीशन हो सकते हैं, डुप्लीकेशन हो सकते हैं, इन्वर्जन हो सकते हैं. दूसरे चेंजेस जो आप ऑलरेडी कर चुके हैं, those were numerical changes in the chromosome which were of 2 category, euploidy, when there is change in entire set of chromosomes. Normally 2 सेट होते हैं जिनको डिप्लॉयड सेट कहते हैं. सिंगल सेट इज मोनोप्लॉयड and 2 sets is diploid. So sometimes there is change in the entire set of chromosomes. तो अगर entire set of chromosome में change है, ये condition कहलाती है euploidy. If there is change in number of a single chromosome, then that condition is known as aneuploidy. So let us start with the structural changes in the chromosomes. Structural changes अभी भी आपको बताए, there can be translocations. Translocations can be Robertsonian translocation, reciprocal translocation and interstitial translocation. Translocation word means एक जीन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसलोकेट हो गई, चली गई, that is translocation. Then deletion means removal of some portion of chromosome. Then there are duplication, some portion of chromosome may double. Then inversions, chromosome का एक पीस टूटे और वो रिवर्स डायरेक्शन में फिर से ज्वाइन हो जाए, that is inversion. And ring chromosome, sometimes telomeres are removed and chromosome becomes ring shaped. Normally जो chromosome होता है वो linear होता है, लेकिन कभी कभी ये ring shaped भी हो जाता है. सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विद क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशंस. Translocation is attachment of one part of chromosome to another chromosome. Normally what happens, यहाँ पे एक वर्ड शब्द यूज होना जरूरी है, that is non-homologous chromosome. Normally crossing over takes place between homologous pair of chromosomes, जिससे जीन्स का एक्सचेंज होता है, वेरिएशन आती है. But in translocation, exchange of parts takes place between 2 non-homologous chromosomes. 2 non-homologous chromosomes के बीच में parts का exchange होता है. This exchange can be interstitial. Interstitial में क्या होगा, broken fragment of a chromosome joins a non-homologous chromosome. एक chromosome का एक piece टूटा और वो जाके दूसरे chromosome से attach होता है, that is interstitial translocation or unbalanced translocation. Second is reciprocal translocation. Reciprocal translocation में 2 non-homologous chromosomes का दोनों का एक
ऑलमोस्ट सिमिलर साइज का पीस ब्रेकअप करता है और वो एक क्रोमोसोम से का दूसरे नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के साथ अटैच हो जाता है। एंड थर्ड टाइप व्हिच इज मोस्ट कॉमन इज रॉबर्ट्सोनियन ट्रांसलोकेशन. इन रॉबर्ट्सोनियन ट्रांसलोकेशन टू एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स फ्यूज. दो एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स के बीच में फ्यूजन हो जाता है. इट विल रिजल्ट इन one less in the total number of chromosomes but amount of genes will be same. क्योंकि एक क्रोमोसोम का पोर्शन टूट के दूसरे से अटैच हो गया है, सॉरी दो क्रोमोसोम एक साथ अटैच हो गए, तो अगर हम क्रोमोसोम्स को काउंट करेंगे तो क्रोमोसोम का नंबर तो कम होगा लेकिन जो जीन का अमाउंट है इट विल बी नॉर्मल. सो दिस पर्सन विल शो no change in its phenotype or in any other structure. Initially translocation होते हैं have no effect on individual carrying it. क्योंकि ट्रांसलोकेशन में जीन एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गई है, डिलीट नहीं हुई है, डबल नहीं हुई है, अमाउंट सेम है, so it will have no effect on the individual in which this translocation has taken place. तो फर्स्ट जनरेशन में जब मियोसिस होती है और फर्टिलाइजेशन होता है, मियोसिस के टाइम में ट्रांसलोकेशन होता है जब क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होती है, एंड the individual which develops from the zygote will have no phenotypic effect because amount and proportion of genes is same although their position has changed. These translocations can cause chronic myelogenous leukemia. ये हम आगे फुल में डिस्कस करेंगे. इसमें माइलोजेनस ल्यूकीमिया में piece of chromosome 9 is attached on the chromosome 22nd, which is known as Philadelphia chromosome. So this is reciprocal translocation. Reciprocal translocation में ये दो non homologous chromosome है, one is shown with blue color and other is shown with pink color. So there is breakage in the portion of pink chromosome and then there is breakage in the chromosome of blue color. Then these parts एक्सचेंज प्लेस. इसका रिजल्ट क्या होगा? ये जो ब्लू क्रोमोसोम है, अगर दोनों के पोर्शन सेम नहीं टूटेंगे, जो ऑरेंज क्रोमोसोम का पोर्शन है वो ब्लू के साथ अटैच हो गया, इसकी जो लेंथ है, जो इसकी नॉर्मल लेंथ थी उससे कम हो गई है. सिमिलरली ये जो लाइट ऑरेंज या पिंक कलर का क्रोमोसोम है, इसमें अटैच हो गया लॉन्ग पीस ऑफ ब्लू क्रोमोसोम. इस क्रोमोसोम का नॉर्मल से साइज इंक्रीज हो. तो इनको अगर हम माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं, जो आपको बताया था साइटोविजन apparatus, उसमें देखते हैं, देखने से these chromosomes can be observed or located कि there is change in this chromosome. ये जो आपका रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन है, इट इज बैलेंस ट्रांसलोकेशन ऑल्सो, क्योंकि जीन ने केवल यहाँ से इधर गई है, इधर से इधर गई है, अदरवाइज जीन का अमाउंट बैलेंस है. सो देयर विल बी no phenotypic effect on the individual carrying this type of translocation. Then comes Robertsonian translocation. In Robertsonian translocation, what happens? Acrocentric chromosome. Human karyotype में 13, 14, 15 and 21 and 22. These chromosomes are acrocentric chromosomes. Acrocentric chromosome क्या होते हैं? Acrocentric chromosomes are those chromosomes which have one arm very short. जब एक आर्म बहुत छोटे साइज की होती है, देख रहे हैं आप इनमें, ये बहुत छोटे साइज की आर्म है, ये लॉन्ग आर्म है. ऐसे क्रोमोसोम्स को कहते हैं एक्रोसेंट्रिक. और ह्यूमन कैरियोटाइप में 14, 15, 16 क्रोमोसोम एक्रोसेंट्रिक होते हैं एंड 21 एंड 22 आर आल्सो एक्रोसेंट्रिक. तो रॉबर्ट्सोनियन ट्रांसलोकेशन में व्हाट हैपेंस, दो नॉन होमोलोगस एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम है, इनका शॉर्ट आर्म का पार्ट ब्रेक हो जाता है, और ये शॉर्ट आर्म का पार्ट ब्रेक होने के बाद जो लॉन्ग आर्म है वो रियूनाइट हो जाती है, ये नया क्रोमोसोम बन गया, और ये जो स्मॉल आर्म का था एक छोटा सा फ्रेगमेंट बन गया, which is usually lost after 2 or 3 सेल डिवीजन. जैसे जैसे सेल डिवीजन होते जाते हैं, इतना छोटा क्रोमोसोम है, किसी के साथ पेयरिंग नहीं होगी, तो अल्टीमेटली दिस क्रोमोसोम इज लॉस्ट. लेकिन ये एक लॉन्ग एक्स्ट्रा लॉन्ग क्रोमोसोम इज फॉर्म्ड व्हिच कंटेन्स ऑल जीन. जितनी जीन थी वो सारी इसमें प्रेजेंट है. जो ये एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स हैं 13, 14, 15,
एंड 21, 22 इन क्रोमोसोम की जो शॉर्ट आर्म है इसके ऊपर जीन्स होती हैं फॉर सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए एंड दीज जीन्स आर प्रेजेंट इन मल्टीपल कॉपीज। इनकी मल्टीपल कॉपी होती है, तो ये एक जगह के besides at one place these are situated at on many different chromosomes। अलग अलग क्रोमोसोम के ऊपर ये वाली जीन जो राइबोसोमल आरएनए के बनाने की जीन है ये सिचुएटेड होती है। तो if these some amount of these genes are lost then it has no effect on the individual। ये जो जीन्स है अगर ये लॉस्ट भी हो गई जीनोम में से तो इंडिविजुअल के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि जो बाकी और दूसरी राइबोसोमल आरएनए बनाने वाली जीन्स है they will keep on functioning and ribosomal RNA will be formed। अब आफ्टर रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन और ये छोटा वाला फ्रेगमेंट हो गया, तो अगर आप कैरियोटाइप में क्रोमोसोम्स को काउंट कर रहे हैं तो देयर विल बी ओनली 45 क्रोमोसोम्स, केवल 45 क्रोमोसोम्स होंगे। लेकिन जो फर्स्ट जनरेशन में देयर विल बी नो इफेक्ट, बट इन सेकंड जनरेशन देयर आर चांसेस ऑफ मिसकैरेज, डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम। एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम के बीच में फ्यूजन हुआ तो 13 क्रोमोसोम की ट्राइसोमी कॉज करती है पटाउ सिंड्रोम और 21 क्रोमोसोम की ट्राइसोमी कॉज करती है डाउन सिंड्रोम। तो इन इंडिविजुअल्स में नेक्स्ट जनरेशन में पटाउ सिंड्रोम, क्योंकि एक क्रोमोसोम ये चला गया और दूसरी दो नॉर्मल कॉपी आएंगी, तो देयर विल बी ट्राइसोमी ऑफ आइदर 13 और 21 क्रोमोसोम, जो भी इस रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन में क्रोमोसोम इन्वॉल्व है उसके। This is unbalanced or interstitial translocation। अनबैलेंस ट्रांसलोकेशन में बताया था कि एक क्रोमोसोम का पार्ट दूसरे क्रोमोसोम के साथ अटैच हो जाता है। ये यहाँ पे दो क्रोमोसोम दिखाए, क्रोमोसोम 14 एंड क्रोमोसोम 21। ये सेंट्रोमियर से ब्रेक हुए, शॉर्ट आर्म वाला पोर्शन अलग हो गया और ये पोर्शन आपका 21 का 14 के ऊपर अटैच हो गया। दिस इज अनबैलेंस ट्रांसलोकेशन। और ये जो ट्रांसलोकेशन है इट कैन अकर ड्यूरिंग मियोसिस 1 और मियोसिस 2। मियोसिस 1 या मियोसिस 2 कभी भी ये ट्रांसलोकेशन अनबैलेंस ट्रांसलोकेशन हो सकते हैं। और जो डाउन सिंड्रोम के 4% केसेस हैं, दीज आर ड्यू टू दिस अनबैलेंस्ड ट्रांसलोकेशन। यहाँ पे ये शो कर रहा है कि हाउ अ बैलेंस ट्रांसलोकेशन कैन चेंज इनटू अनबैलेंस ट्रांसलोकेशन, क्योंकि जो फर्स्ट जनरेशन होगी उसमें तो ट्रांसलोकेशन के बाद बैलेंस रहेगा। ये आपका एक लॉन्ग क्रोमोसोम है, एक शॉर्ट क्रोमोसोम है। दिस इज अ पर्पल, आई कैन से दिस इज और आई either I can say it is 14 chromosome, it is 21 or it is purple chromosome and it is pink chromosome। इन दोनों के पार्ट्स के बीच में एक्सचेंज हुआ, पर्पल का पोर्शन पिंक के साथ अटैच हो गया और पिंक का पोर्शन पर्पल के साथ, ट्रांसलोकेशन हो गया, जीन्स ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली। बट दिस इंडिविजुअल इज बैलेंस्ड, क्योंकि जो पिंक वाली जीन्स थी वो पर्पल पे आ गई हैं, पर्पल की जीन्स पिंक पे चली गई हैं, बट ऑल जीन्स इन सेम प्रोपोर्शन आर प्रेजेंट। तो दिस इज अ बैलेंस ट्रांसलोकेशन। लेकिन नेक्स्ट जनरेशन के लिए जब मियोसिस होती है एंड देयर इज अगेन पेयरिंग ऑफ जीन्स एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, बाई चांस ऐसा हो सकता है कि ये एबनॉर्मल पिंक क्रोमोसोम एंड नॉर्मल पर्पल क्रोमोसोम कैन गो इन वन जाइगोट। अब यहाँ पे ये वाली जो जीन्स है जो ट्रांसलोकेट हो गया पर्पल की पिंक के ऊपर गई थी, these genes will be present in 3 copies। एक तो इसका नॉर्मल क्रोमोसोम होगा जो एक पेरेंट से आएगा जो नॉर्मल क्रोमोसोम होगा, दूसरा इसका अपना नॉर्मल क्रोमोसोम है पर्पल, क्योंकि इसके दो पर्पल क्रोमोसोम में से केवल एक ही क्रोमोसोम में ट्रांसलोकेशन हुआ था, अदर क्रोमोसोम वाज नॉर्मल। तो ये नॉर्मल क्रोमोसोम चला गया जाइगोट के अंदर, या यू कैन से इन अ गैमीट, एक नॉर्मल चला गया, दूसरा एबनॉर्मल पिंक गया। तो पिंक की तो ये वाली जो जीन्स थी इनकी डेफिशिएंसी हो गई और पर्पल की ये जीन्स डबल कॉपी में प्रेजेंट हो गई। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन देयर विल बी 3 कॉपीज ऑफ पर्पल जीन्स एंड देयर विल बी 1 कॉपी ऑफ दिस पोर्शन ऑफ पिंक जीन, क्योंकि इस क्रोमोसोम में अपनी जीन्स नहीं। तो इट विल गिव राइज टू अ अनबैलेंस्ड ट्रांसलोकेशन, जिससे मोस्ट प्रोबेबली सच चेंजेस कॉज
spontaneous abortions or some phenotypic or metabolic abnormality. आपको थोड़ी देर पहले बताया था about chronic myelogenous leukemia. This chronic myelogenous leukemia occurs due to translocation between short arm of chromosome 22 and 9. क्रोमोसोम 22 और 9 की जो शॉर्ट आर्म है उनके बीच में ट्रांसलोकेशन हो जाता है. The section of chromosome 9 switches place with the section of chromosome 22, giving rise to a new gene. जब क्रोमोसोम 9 का पोर्शन टूटने के बाद अटैच हो जाता है क्रोमोसोम 22 से, क्रोमोसोम 22 का भी पोर्शन ब्रेक हुआ, वो जाके क्रोमोसोम 9 से अटैच हो गया. This chromosome 9 becomes extra long. तो जितना नॉर्मल साइज है उसका उससे ज्यादा वो लॉन्ग हो जाता है. और 22 के ऊपर जो 9 का पोर्शन आके अटैच हुआ है, this 22 क्रोमोसोम becomes extra short. जितना अपना शॉर्ट था उससे भी ज्यादा शॉर्ट हो जाता है. तो ये दोनों क्रोमोसोम्स की फिजिकल अपीयरेंस में चेंज हो जाता है, which can be again observed with the help of cytovision apparatus. अब ये जो क्रोमोसोम 9 की कुछ जीन्स 22 क्रोमोसोम के ऊपर अटैच हुई है, क्रोमोसोम के ऊपर जीन अटैच होने से a new gene is formed that is known as BCR-ABL gene. BCR-ABL gene. ये BCR-ABL gene जो है, this produces abnormal WBCs. और WBCs को कमांड मिलता है कि वो बहुत तेजी से डिवाइड होती रहें और ज्यादा नंबर में ब्लड में जाएं. And these abnormal WBCs release enzyme tyrosine kinase. This tyrosine kinase enzyme again stimulates release of many immature and abnormal WBCs in the blood, giving rise to chronic myelogenous leukemia. It is a type of cancer. ये एक टाइप का कैंसर है, और क्योंकि जो abnormal RBC हैं और इमेच्योर आरबीसी हैं उनका ब्लड में नंबर बढ़ता जाता है. नॉर्मल आरबीसी प्रेजेंट नहीं होती जो कि सारे नॉर्मल फंक्शन करती हैं, वो फंक्शन खत्म हो जाते हैं और ये एबनॉर्मल और इमेच्योर आरबीसी ब्लड में आ जाती हैं. दिस कंडीशन इज नोन एज क्रॉनिक माइलोजेनस ल्यूकेमिया. और फिर से इसको रिपीट करूं. ड्यूरिंग ट्रांसलोकेशन, इट इज अ बैलेंस ट्रांसलोकेशन. क्रोमोसोम 9 का पोर्शन 22 के ऊपर अटैच हो गया, 22 का पोर्शन 9 के ऊपर अटैच हो गया. लेकिन 22 का पोर्शन लॉन्ग पोर्शन टूटा था, वो 9 के ऊपर अटैच हुआ, तो क्रोमोसोम 9 बिकम्स एक्स्ट्रा लॉन्ग. जितनी उसकी नॉर्मल लेंथ थी उससे लंबा हो गया. क्रोमोसोम 9 का जो पोर्शन टूटा था शॉर्ट आर्म का, दैट वाज स्मॉलर देन द पोर्शन ऑफ 22 क्रोमोसोम व्हिच वाज ब्रोकन. अब वो 22 के ऊपर जब क्रोमोसोम 9 का पोर्शन अटैच हो गया, तो ये क्रोमोसोम 22 अपनी नॉर्मल लेंथ से कम लेंथ का हो गया. दिस इज एक्स्ट्रा शॉर्ट 22 क्रोमोसोम. और क्रोमोसोम 9 की जीन्स का क्रोमोसोम 22 की जीन्स के ऊपर लोकेट होने से a new gene is also formed. ये न्यू जीन का नाम है BCR-ABL जीन. ये BCR-ABL जीन प्रोड्यूस करती है एबनॉर्मल WBCs इन द ब्लड. यहाँ पे आपको एक बात बता दी जाए कि ये जो ट्रांसलोकेशन होता है, इट टेक्स प्लेस इन सोमेटिक सेल्स ओनली. ये इस पर्सन ने इनहेरिट नहीं करा है. ये पर्सन नॉर्मल था, नॉर्मल क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट था, लेकिन जब बॉडी में माइटोसिस होती है, माइटोसिस सेल डिवीजन होते हैं, दैट टाइम आल्सो ऑल दीस चेंजेस कीप ऑन टेकिंग प्लेस, लेकिन ये इनहेरिट नहीं होते. अब ये जो ट्रांसलोकेशन है और किसी टिश्यू की सेल में हो रहे होंगे, देयर विल बी नो इफेक्ट. लेकिन अगर ये ट्रांसलोकेशन बोन मैरो में होता है, देन इट विल गिव राइज टू क्रोनिक माइलोजेनस ल्यूकेमिया. और ये जो एबनॉर्मल 22 क्रोमोसोम है विद डिलीशन एंड न्यू अटैचमेंट, इट इज नोन एज फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम, क्योंकि इसको सबसे पहले फिलाडेल्फिया में ऑब्जर्व करा गया था. दैट इज व्हाई इट इज नोन एज फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम. नेक्स्ट एबनॉर्मल structural abnormality of chromosomes is chromosomal deletion. Deletion means deletion of some part of the chromosome. ये जो डिलीशन हो सकते हैं, these can be inherited as well as de novo. Meiosis के टाइम हुआ ये चेंज और ये इंडिविजुअल में चला गया. डिलीशन कैन बी टर्मिनल और इंटरस्टिशियल. टर्मिनल डिलीशन जो क्रोमोसोम की एक आर्म का एक पोर्शन एंड से ब्रेक हो जाए, दैट विल बी टर्मिनल डिलीशन. और if it is
between the chromosome, then it is known as interstitial deletion. और अगर deletion is large, then it can cause spontaneous abortion. One example of small deletion is Cry-Duchet syndrome. This is due to deletion of part of the short arm of chromosome 5. Chromosome 5 की short arm के deletion होने से syndrome होता है, जिसको कहते हैं Cry-Duchet syndrome. ये आपको deletion दिखाया है, how deletion can take place. ये क्रोमोसोम है पूरा, A B C D E F G H I J तक जीन दिखाएंगे. दो जगह से ब्रेकेज हुई, ब्रेकेज होने के बाद ये पोर्शन डिलीट हो गए, जिसमें E F G जीन्स थी, ये निकल गया, और C और ये D के बाद H पोर्शन अटैच हो गया. दिस इज डिलीशन. और अगर ये वाला पोर्शन EFG का रिवर्स डायरेक्शन में, इसका ओरिएंटेशन चेंज हो गया और ये फिर वहीं अटैच हो गया, तो जीन्स का जो ओरिएंटेशन था EFG, इसके बदले ओरिएंटेशन हो गया GFE. ये ओरिएंटेशन हो गया. दिस इज इन्वर्जन. इन्वर्जन में देयर इज नो लॉस ऑफ जीन, नो गेन ऑफ जीन, केवल इनकी पोजीशन चेंज हो गई है. तो यूजुअली दीज हैव नो फेनोटाइपिक इफेक्ट और नो हार्मफुल इफेक्ट. कभी कभी लेकिन ऐसा होता है कि जीन की पोजीशन चेंज होने से न्यू जीन इज फॉर्म्ड और सम जीन इज साइलेंस. जैसे कि आपने अभी माइलोजीनस ल्यूकेमिया में देखा था, जीन्स की पोजीशन चेंज होने से दो नई जीन के कांटेक्ट में आने से एक नई जीन बन गई. कि अगर ऐसा होता है देन देयर विल बी हार्मफुल इफेक्ट, लेकिन नॉर्मली देयर इज नो हार्मफुल इफेक्ट बाय इन्वर्जन. और डिलीशन हो गया, डिलीट हो गई ये जीन्स. यहाँ पे दिस इज अगेन डिलीशन. ये दो होमोलोगस क्रोमोसोम थे, इनका दोनों का ये पोर्शन ब्रेक हुआ, और ये ब्रेक होने के बाद ये यहाँ पे ब्रेकेज हुआ G और H जीन्स का. ये क्रोमोसोम्स यहाँ अटैच हो गए, तो डबल सेंट्रोमियर वाला डाइसेंट्रिक क्रोमोसोम बन गया, और ये एक एसेंट्रिक फ्रेगमेंट बन गया, विच विल बी अल्टीमेटली लॉस्ट. दिस इज, वो पहले जो दिखाया था वो था आपका इंटरस्टिशियल डिलीशन, एंड दिस इज टर्मिनल. ये यहाँ से ब्रेक हुआ, ये पोर्शन आपका इतना बड़ा डिलीट हो गया, और ये आपका क्रोमोसोम. आफ्टर डिलीशन, when meiosis takes place and pairing of chromosomes takes place, then जहाँ पे जो जीन नहीं है, जहाँ डिलीटेड है, अगर वो पोर्शन लॉन्ग है, तो there will be bulge in the chromosome. जिसको और क्रोमोसोम में नॉर्मल जीन है, हर क्रोमोसोम अपने साथ की जीन के साथ पेयर करता है, BB के साथ, CC के साथ, DDD के साथ, इधर HH के साथ. बीच में EFG जीन इस वाले क्रोमोसोम में डिलीटेड है, तो ये पोर्शन होगा इन द फॉर्म ऑफ बल्ज. ये आपका डिलीटेड क्रोमोसोम है, डिलीटेड क्रोमेटिड्स है, और ये आपके नॉर्मल क्रोमेटिड्स. So this Cry-Duchet syndrome is due to deletion of some part of short arm of chromosome. ये फर्स्ट ऑब्जर्व करा था लीजूने ने 1963 में. With this deleted portion of genes, there is abnormal physical and mental development. और जो इस सिंड्रोम का स्पेशल फीचर है, इसमें लैरिंक्स का नॉर्मल डेवलपमेंट नहीं होता. तो ड्यू टू दिस एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ लैरिंक्स, व्हेन दीज infants or children cry, they produce a sound like mewing of a cat. जैसे कैट म्यू कर रही है उस तरह की आवाज निकलती है, तो इसलिए दिस सिंड्रोम इज आल्सो नोन एज कैट्स क्राई सिंड्रोम. ये कैरियोटाइप है ऑफ अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम क्राई-डुचेट सिंड्रोम. 5 क्रोमोसोम है, इसकी ये शॉर्ट आर्म का थोड़ा सा ये टर्मिनल पोर्शन मिसिंग है, डिलीटेड है. These are the physical features of a child suffering from Cry-Duchet syndrome. Chromosomal inversion. जो क्रोमोसोम्स के ब्रोकन पोर्शन अभी आपको दिखाया था, इन्वर्टेड डायरेक्शन में क्रोमोसोम को ज्वाइन कर लेते हैं. दिस कंडीशन इज नोन एज इन्वर्जन. These inversion can be paracentric or
पेरीसेंट्रिक, पैरासेंट्रिक विच आर बाईपासिंग सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर जिसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहा। जब क्रॉसिंग ओवर होती है इन्वर्जन के बाद, देयर कैन बी नॉर्मल क्रोमोसोम्स, देयर कैन बी डाइसेंट्रिक क्रोमोसोम्स एंड देयर कैन बी एसेंट्रिक क्रोमोसोम। और पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन में व्हाट हैपेंस? इन पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन सेंट्रोसोम इज इन्वॉल्व्ड, ये सेंट्रोसोम वाले पोर्शन के साथ इन्वॉल्व होते हैं। इसकी क्रॉसिंग ओवर में नॉर्मल क्रोमोसोम्स हो सकते हैं और एबनॉर्मल क्रोमोसोम्स हो सकते हैं, आइदर विद 1 कॉपी ऑफ जीन और 3 कॉपीज ऑफ अ जीन। ये आपको इन्वर्जन दिखाए हैं। दिस इज पैरासेंट्रिक इन्वर्जन व्हेन सेंट्रोमियर इज नॉट इन्वॉल्व। ये वाला पोर्शन ब्रेक करा और ये इन्वर्टेड डायरेक्शन में अटैच हो गया। दिस इज पेरीसेंट्रिक जिसमें सेंट्रोमियर इन्वॉल्व है। ये आपका सेंट्रोमियर वाला पोर्शन ब्रेक करा, सेंट्रोमियर वाला पोर्शन ब्रेक करके रिवर्स डायरेक्शन में अटैच हो गया। दिस इज अगेन डायग्राम शोइंग पैरासेंट्रिक इन्वर्जन जिसमें सेंट्रोमियर इन्वॉल्व नहीं है। नेक्स्ट कंडीशन इज क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन, when some portion of chromosome is duplicated. This is known as chromosomal duplication. Chromosomal duplication has very important role in the process of evolution. There is a book, Role of Chromosomal Duplication in Evolution. उसमें पूरी बुक में डिस्क्राइब करा गया है किस तरह से क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन can help in the evolution. What happens in portion of genes is duplicated. These again can be either inherited or these can be de novo. There is tandem duplication. Tandem duplication, same sequence, उसी sequence में duplication हो जाए. This occurs at the time of DNA replication. कभी-कभी DNA का same portion दोबारा से replicate हो जाता है. और it can be due to translocation also. Translocation के बाद जो second stage आएगी वो duplication आएगी. एक portion में जीन्स डबल हो जाएंगी और एक क्रोमोसोम में जीन्स वो वाली रहेंगी। और देयर कैन बी रिवर्स डुप्लीकेशन। दिस रिवर्स डुप्लीकेशन व्हेन डुप्लीकेशन अकर्स इन रिवर्स डायरेक्शन, जीन्स का ओरिएंटेशन चेंज हो जाता है, ABCD के बदले DCBA सीक्वेंस हो जाए, दैट इज रिवर्स डुप्लीकेशन। जीन डुप्लीकेशन हैज बीन ऑब्जर्व्ड इन मेनी ऑर्गेनिजम्स। जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनमें मल्टी जीन सुपर फैमिलीज होती हैं और ड्रोसोफिला में 12 ही कंडीशन ऑब्जर्व करी गई है ड्यू टू जीन डुप्लीकेशन। जो मल्टी जीन सुपर फैमिलीज हैं, these gene families are with quite similar genes but slightly different in structure and function. तो ये माना जाता है कि ये जो इस तरह की सुपर जीन फैमिलीज हैं, these arise due to duplication of chromosomes. Evolution के टाइम when some gene is duplicated, what will happen कि जो एक जीन है वो तो फंक्शन करती रहेगी but other gene will be free to accumulate mutations और उसमें चेंज होकर they can give rise to new structures. ये जो आपकी सुपर फैमिली है जीन्स की, it contains cell adhesion molecules, cadherins, immunoglobulins. Immunoglobulins are 4 with slight difference in the structure. तो ये जो सारे के सारे हैं ये एक ही जीन के डुप्लीकेशन से राइज हुए हैं। दूसरी जीन में देयर इज स्लाइट चेंज, उस स्लाइट चेंज ने स्लाइटली डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन बनाया है। और ये जो सुपर जीन फैमिली है ये शो करती हैं रोल ऑफ chromosome duplication in evolution of new genes and ultimately evolution of new species. Drosophila में normal eye locus है जीन की which is responsible for normal eye. And Drosophila is an insect, तो इसमें compound eyes होती हैं। eye में about 840 facets are present. अगर एक क्रोमोसोम में जीन डुप्लीकेशन हो जाए तो there will be slightly barred eye और उसमें फीसेट्स का नंबर कम हो जाता है।
अगर दोनों साइड्स पे डुप्लीकेटेड जीन प्रेजेंट है, दिस कंडीशन इज डोमिनेंट कंडीशन एंड आई बिकम बार शेप्ड। नॉर्मल राउंडेड आई के बदले बार शेप्ड आई हो जाती है, दिस इज नोन एज बार आई। और इसमें जो फीसेट्स हैं इसका नंबर ओनली 70 रह जाता है। इसके बाद अगर एक क्रोमोसोम के ऊपर 3 टाइम्स डुप्लीकेशन ट्रिप्लीकेशन हो जाता है तो देन आई बिकम मोर कंस्ट्रक्टेड और इसमें ओनली 45 फीसेट्स आर प्रेजेंट। ये जो जीन डुप्लीकेशन है ये एबनॉर्मल क्रॉसिंग ओवर से भी हो सकता है। यहाँ पे है ये क्रॉसिंग ओवर है, दो जीन है। यहाँ पे जो ब्रेकेज हुआ है ये आफ्टर 2 जीन्स हुआ है, यहाँ दोनों जीन्स के बीच में हो गया। इट विल रिजल्ट इन 1 chromosome with 3 copies of bar gene and 1 chromosome with single copy. ह्यूमन बींग्स में कंडीशन है जो ऑब्जर्व करी गई है, डुप्लीकेशन है क्यू आर्म ऑफ 5 क्रोमोसोम। 5 नंबर के क्रोमोसोम की क्यू आर्म पे देयर इज डुप्लीकेशन of genes that is due to reciprocal translocation in one parent। एक पेरेंट में रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन हुआ, एक जीन ने पोजीशन चेंज कर ली तो ऑफस्प्रिंग ने उस जीन की 2 कॉपीज रिसीव करी एंड 1 नॉर्मल कॉपी केम फ्रॉम अदर पेरेंट, तो देयर आर 3 कॉपीज। तो ये जो कंडीशन है इट गिव राइज टू सिमिलर फेशियल एक्सप्रेशन एट डिफरेंट एजेस। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है देयर इज चेंज इन फेशियल एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन चेंज होते चले जाते हैं। लेकिन अगर ये 5 क्रोमोसोम की क्यू आर्म पर डुप्लीकेशन है देन देयर इज नो चेंज इन फेशियल एक्सप्रेशन अकॉर्डिंग टू एज। एज के साथ फेशियल एक्सप्रेशन में चेंज नहीं होता। ये फीटल कंडीशन में फेशियल एक्सप्रेशन शो करे हैं। ये 2 सिबलिंग्स हैं, she is 5 month old and she is 8 years old। दोनों की जो फेशियल एक्सप्रेशन है these are similar। आप ये लिप्स की पोजीशन देखिए, आईज का फोकसिंग देखिए, एक्सप्रेशन देखिए, तो ये सिमिलर फेशियल एक्सप्रेशन remains due to duplication of genes। ये आपको डिफरेंट कंडीशंस दिखाई हैं जो एक बार ट्रांसलोकेशन हुआ which can give rise to different conditions। ये आपके दिखाई हैं 2 नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है, उनके बीच में ट्रांसलोकेशन हुआ तो ये 2 एबनॉर्मल क्रोमोसोम बन गए। रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन है इसलिए जीन्स आर इन बैलेंस्ड कंडीशन। के बाद आफ्टर मियोसिस गैमेट फॉर्मेशन व्हाट विल हैपन, अब यहाँ पे ये FGH इन जीन्स का डुप्लीकेशन हो गया और जो 1, 2, 3 जीन्स थी वो इसमें से डिलीट हो गई। ये डिलीशन भी हो गया, डुप्लीकेशन हो गया। अगर दूसरे 2 क्रोमोसोम का कॉम्बिनेशन होता है देन देयर इज डुप्लीकेशन ऑफ जीन 1, 2, 3। ये जीन 1, 2, 3 अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे भी है। ये लाइट ऑरेंज जो क्रोमोसोम है ये नॉर्मल क्रोमोसोम है और ये आफ्टर ट्रांसलोकेशन क्रोमोसोम है। अगर इन दोनों सेम गैमेट में आ गए तो देयर विल बी 1, 2, 3 जीन डुप्लीकेट कंडीशन में और FGH जीन्स आर मिसिंग। Here again 1, 2, 3 genes are in single copy only and FGH genes are also present in single copy। ये बाकी जीन्स नॉर्मल है, ये दोनों जीन्स सिंगल कॉपी में प्रेजेंट है। और अगर ये 2 क्रोमोसोम साथ आ जाते हैं क्योंकि इनकी भी पेयरिंग हो सकती है then again 1, 2, 3 genes are in single dose and FGH genes are also in single dose and 4, 5, 6 these genes are present in their normal double dose। So one translocation can give rise to other conditions in future generations। All these chromosomal structural abnormalities are mixed type। Translocation can lead to duplication, translocation can lead to deletion, translocation can lead to inversion और ये जो conditions हैं these can also arise de novo। Again this is the cytovision apparatus। With the help of this you can study karyotype and you can detect structural abnormalities of chromosomes also by this apparatus। For this study
These books were consulted: Principle of Genetics by Tamarin, Concepts of Genetics by Cludd, Cummins and Spencer, Genetics, Principles and Analysis by Hertel and Jones. This is all for today. Thank you.